Good afternoon, sir. So in the last lecture, we have discussed some properties of limit of sequence. Okay. So now today we will see some more results and some examples. Okay. So uh, yes, in the yesterday's lecture, we have proved that suppose xn is convergent, yn is convergent, then xn plus yn is convergent, xn into yn is convergent, xn upon yn is convergent provided yn is not equal to 0. Okay. So today we will see sandwich theorem and its application. Okay. So what is sandwich theorem? Before going to sandwich theorem, let me recall something. Let me recall some results that we have discussed in a previous lecture. Recall that. So in the last lecture we have discussed this. If limit of xn as n tends to infinity, L limit n tends to infinity, yn equal to m, then limit of sequence xn plus yn as n tends to infinity is equal to L plus m, and that is limit of xn plus limit of yn, limit n tends to infinity alpha xn, alpha into L, limit n tends to infinity xn into yn is equal to L into m, and the last one is this xn upon yn is equal to L by m, where yn not equal to 0 for every n belongs to n, and m not equal to 0. So these are the algebra. This is known as algebra of convergent sequences. Okay. So today, now let me. So from this you can say that if you take set of all convergent sequences, then sum of two convergent sequences is again convergent. So x plus xn is there and yn is there. For xn belongs to C, yn belongs to C. Therefore, xn plus yn belongs to C, and alpha into xn. Note that xn belongs to C. C means set of all convergent sequence. Yn belongs to C. Then xn plus yn, this is also member of C, and alpha into xn, it is also member of C. Therefore, you can say that set of all convergent sequences C is a vector space. Actually, you need to check tan property, but this becomes a subspace. Okay. So this is a vector space. Now we will see sandwich theorem.
Okay, so let me first of all write down the statement of this theorem. So what does it tell us? This is Sandwich theorem for sequences. Okay, so we have given three sequences xn, yn and zn, so that xn less than or equal to yn less than or equal to zn, and if xn and zn have the same limit, then yn has also a limit. Limit of yn is equal to limit of xn equal to limit of zn. So let for sequences xn, yn, zn, such that xn less than or equal to yn less than or equal to zn for every n belongs to n. And limit n tends to infinity, xn is equal to limit n tends to infinity zn, then prove that limit n tends to infinity yn is equal to limit n tends to infinity xn, or you can here write down zn. ओके, उसका मीनिंग क्या है? देखिए, xn, yn और zn सीक्वेंसेस दी हुई है और ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है सीक्वेंसेस xn लेस देन और इक्वल टू yn लेस देन इक्वल टू zn, और फर्स्ट वाली और लास्ट वाली सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और दोनों की लिमिट सेम है। अगर ये xn की लिमिट और zn की लिमिट सेम है तो आप बीच वाले की भी लिमिट निकाल सकते हो, और इन अदर वर्ड्स बीच वाली सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी और इसकी लिमिट कौन सी होगी? क्योंकि इसकी लिमिट और इसकी लिमिट की जितनी ही होगी, ये हमें प्रूव करना है। सो लेट्स बिगिन द प्रूफ। हमें क्या दिया हुआ है? वी हैव गिवन दैट ये दोनों चीज दी हुई है। लिमिट n tends to infinity, let me take this limit to be L. ये सेम लिमिट है, मैं उसको सपोज क्या बोल देता हूं, L। मेरा क्लेम क्या है? एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में कोई भी थ्योरम प्रूव करना है या कोई भी रिजल्ट प्रूव करना है, पहले दी हुई चीज अच्छे हिसाब से लिखिए, बाद में आपको क्या प्रूव करना है वो लिखिए, और बाद में प्रूव करने के लिए कौन सा स्टेप आपको इस्तेमाल करना चाहिए वो देखिए, तो आपका 50% से ज़्यादा काम हो जाएगा। यहाँ पे मेरा क्लेम ये है, आई वॉन्ट टू शो दैट लिमिट ऑफ yn इज इक्वल टू लिमिट ऑफ xn, और yn इज कन्वर्जेंट, और लिमिट ऑफ yn n टेंस टू इन्फिनिटी yn मुझे कितनी प्रूव करनी है? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn, डेट इज आपको ये बताना है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी yn, ऑलरेडी वी हैव टेकन लिमिट ऑफ xn इज इक्वल टू l, सो मुझे ये प्रूव करना है लिमिट ऑफ yn इक्वल टू l। ठीक है अभय? सो व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप टू शो दैट दिस हैज लिमिट l? मुझे क्या करना चाहिए? कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। Yes, let us take epsilon positive. So let epsilon greater than 0 be given. ठीक है, तो मुझे एक n नॉट निकालना है so that something happen. तो देखिए ये epsilon पॉजिटिव है, ठीक है, तो मुझे पहले मैं स्ट्रेटेजी लिखता हूँ, ये एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुझे क्या एस्टिमेट करना है? yn माइनस l, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट
some n naught such that for all n greater than equals to n naught, this implies that mod of yn माइनस एल लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन वाई एन लेस देन क्या होना चाहिए, एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मुझे लाना है, तो मुझे एप्सिलॉन दिया हुआ है, तो ये मुझे ये एस्टिमेट करना है। तो देखिए मैं किस हिसाब से ये एस्टिमेट करता हूँ। देखिए मुझे दिया हुआ क्या है, एक्स एन और जेड एन की लिमिट एल है और ये एप्सिलॉन पॉजिटिव है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दो n1 और n2 मुझे मिलेंगे, तो क्या होगा, सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, xn माइनस एल और l माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन क्या हो जाएगा, l प्लस एप्सिलॉन। और n बिगर देन n2 के लिए क्या होगा, l माइनस एप्सिलॉन लेस देन zn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अगर ये मुझे दी हुई चीज़ है, वो देखिए मुझे दिया हुआ क्या है, एक्स एन लेस देन और इक्वल टू वाई एन लेस देन, मैं देखो यहाँ दो मिल गई है, तो मुझे एन नॉट क्या चूज करना चाहिए, एज यूजुअल आई विल टेक n1 मैक्सिमम ऑफ n1 n2। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट, यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये दिया हुआ है मुझे, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एल माइनस एप्सिलॉन, अगर मेरा n नॉट से बड़ा होता ये, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या होगा, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन और इक्वल टू एक्स एन। ठीक है, ये है, देखिए यहाँ से, बट एक्स एन लेस देन और इक्वल टू क्या है, वाई एन लेस देन और इक्वल टू क्या है, जेड एन, और जेड एन का पिछला पोर्शन क्या है, एल प्लस एप्सिलॉन। तो मैं ये, मुझे ज़रूरत है इतना मैं लूँगा, एल माइनस, मैं ये नहीं लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन, तो ये तो मिल गया मुझे एन नोट कि क्या हुआ कि एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में ये वाई नोट, और आई हैव एस्टिमेटेड। सो द टेक्निक इज वेरी सिंपल। सो सिंस आई हैव गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आई कैन नाउ फाइंड आउट n1 n2 सो दैट दिस इज ट्रू। तो उसमें कैसे मैं लिखूंगा, देखिए सिंस xn tends to L, Zn tends to L, there exists n1, n2 belongs to n such that for all n greater than equals to n1, this implies that xn minus L less than epsilon. For all n greater than equals to n2, this implies that Zn minus L less than epsilon. Now take epsilon n not equal to maximum of n1 and n2. तो क्या होगा, therefore from this you can say that n0 is greater than equals to n1, n0 is greater than equals to n2. Therefore for all n greater than equals to n naught, this implies that n greater than equals to n1 and greater than equals to n2। तो ये क्या हो जाएगा, n1 से बड़ा होगा तो mod of xn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mod of zn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो उसको आप इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन zn लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। मैं उसको 1 बोल देता हूँ। ठीक है, नाउ फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n0, ठीक है, देखिए l माइनस एप्सिलॉन और यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हैं, दिस implies that
Now let me put this together, these two terms. L minus epsilon less than xn, but xn less than or equal to yn, which is less than or equal to zn, and zn less than, यहाँ पे मुझे रीजन क्या लिखना चाहिए, xn less than or equal to yn less than or equal to zn for every n belongs to n. Therefore it is true for n greater than or equals to n0. So now this implies that L minus epsilon less than yn less than L plus epsilon. This implies that you can say that mod of yn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन. तो देखिए मैंने एप्सिलॉन से स्टार्ट किया था और एन नॉट फाइंड कर दिया, ठीक है. तो उसका मतलब क्या है, देखिए एप्सिलॉन से मैंने शुरुआत की थी और मुझे एन नॉट मिल गया ये एन में, ठीक है. सो दैट दिस हैपन. देयरफॉर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists n naught in n such that for all n greater than or equals to n0, this implies that yn minus L less than epsilon, or simply you can say that limit n tends to infinity yn equal to L is proved. तो ये theorem है sandwich theorem. This is a very important theorem for examination as well as for application purpose also. This is important. Now let me define to definition when I can say that xn tends to infinity or sequence diverges to infinity, or when, what is the meaning of sequence diverges to minus infinity. तो ये मैं definition लिखता हूँ. Divergence to infinity ठीक है. A sequence xn is said to be diverse to infinity, or simply you can here, what is the meaning of this limit xn equal to infinity? Diverse to infinity if for every a greater than 0 there exists n naught in n such that for all n greater than or equals to n naught, this implies that xn is bigger than a. ये है डेफिनेशन. एन नॉट तो आपको निकालना है, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन के जगह पे मैं क्या लूँगा, ए. मैं कितना भी बड़ा ए ले लूँ, आई कैन फाइंड आउट वन एन नॉट फ्रॉम एन सो दैट ऑल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस आर बिगर देन दिस नंबर आफ्टर सम स्टेज. यही मतलब निकलता है. इसका मतलब क्या होगा, देखिए एन नॉट मीन्स इट इज अ फाइनाइट नंबर. एन नॉट से आगे वाले सभी टर्म के लिए एक्सन किन से बड़ा होगा, ए से बड़ा होगा. तो मैं बता सकता हूँ कि एक्सन टेंस टू इन्फिनिटी और एक्सन इज डाइवर्स टू इन्फिनिटी, ठीक है. सिमिलरली ये वाली डेफिनेशन देखिए, सीक्वेंस एक्सन इज सेड टू बी डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी. If for any a or for every a less than 0 there exists some n naught in n such that for all n greater than or equals to n naught, this implies that xn less than a. ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो मैं ये बता सकता हूँ कि xn डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है. तो अभी ये जो रिजल्ट है नेक्स्ट वाला वो क्या देखिए.
इसमें क्या मुझे दिया है, let x and y in b sequences such that xn less than or equal to yn, and this is true for every n belongs to n. ठीक है, और दूसरी चीज ये, if x and y are convergent, then convergent means इसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी, तो ये लिमिट में भी ये ट्रू रहेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn लेस देन और इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये ट्रू रहेगा। और दूसरी बात ये है, इफ xn इक्वल टू इन्फिनिटी, स्मॉलर वाली सीक्वेंस है ये डाइवर्स टू इन्फिनिटी है, तो बड़ी वाली सीक्वेंस भी डाइवर्स टू इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो ये प्रूव करना है। तो देखिए ये दोनों कन्वर्जेंट है, सिंस xn and yn आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, there exist L and M belongs to R such that, let me take limit of xn is equal to L, limit n tends to infinity, yn equal to M. Also we have given that xn less than or equal to, मुझे क्या बताना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये बताना है, xn लेस देन और इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी yn। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है, डेट इज आई वॉन्ट टू शो दैट L लेस देन और इक्वल टू M। तो कैसे मैं प्रूव करूंगा ये, तो देखिए A लेस देन और इक्वल टू B इफ एंड ओनली इफ A, ये देखिए ये A लेस देन B प्लस एप्सिलॉन, अगर मैं बता देता हूं, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये ऑर्डर फील्ड में हमने देखा था ये रिजल्ट, अगर ये है एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एप्सिलॉन, देन यू कैन से दैट A लेस देन और इक्वल टू B। तो मुझे यहाँ पे L लेस देन और इक्वल टू M बताना है, तो मुझे क्या बताना चाहिए, L स्ट्रिक्टली लेस देन M प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव। ठीक है, तो मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए अभय? Epsilon greater than 0. Yes, so let me take epsilon positive. We shall prove that L less than B plus epsilon। ठीक है, sorry, B not B but M।
तो ये देखिए कैसे स्ट्रेटेजी, देखिए मैं पहले आपको बताता हूँ। हम क्या कर सकते हैं, देखिए सोचिए। एप्सिलॉन तो मुझे दिया हुआ है, ठीक है, और ये मैं प्रूव करना चाहता हूँ एल लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ पे क्या है, एम प्लस एप्सिलॉन है, और यहाँ पे एल है। तो समहाउ आई नीड टू ब्रिंग एल एम एंड एप्सिलॉन इनटू द पिक्चर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये एक्शन कन्वर्जेंट है, एक्शन की लिमिट क्या है, एल है, तो मुझे क्या मिलेगा, n1 और n2 दो मिलेंगे, एक्शन के लिए n1। तो क्या होगा यहाँ पे, मॉड ऑफ xn माइनस एल लेस देन, मुझे यहाँ पे फॉर टाइमिंग मैं एप्सिलॉन ले रहा हूँ, एप्सिलॉन बाई 2 की ज़रूरत होगी तो वो भी मैं करूँगा। यहाँ पे क्या होगा, yn माइनस एम। तो देखिए यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1 इम्प्लाइज, मैं इंटरवल फॉर्म में लिखता हूँ तो l माइनस इनइक्वालिटी फॉर्म में l माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। और फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n2 के लिए क्या होगा, m माइनस एप्सिलॉन लेस देन yn, वो लेस देन क्या हो जाएगा, m प्लस एप्सिलॉन। तो देखिए ये दोनों को मैं क्लब करता हूँ, ठीक है। तो क्या आता है, ये वाला देखिए, यहाँ से एन नॉट आप मैक्सिमम ले लीजिए, तो ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला देखिए एल माइनस एप्सिलॉन, यहाँ से एक्सन आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू वाइन दिया हुआ है, बट वाइन लेस देन क्या है, एम प्लस, और इसको साथ में लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन इस तरह ला दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, L less than m plus 2 epsilon, but I need epsilon, so I should replace epsilon by which number? अब क्या लेना चाहिए, epsilon by 2, ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो क्या पता चल गया कि ये कैसे आउटलाइन। सो सिंस xn tends to L, yn tends to m, there exists n1 n2 from set of natural number n, so that for all n greater than equals to n1, this implies that xn minus L less than epsilon by 2। ये एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिया, आपको अब पता, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने लिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है मिस्टर अभय। ठीक है सर। मिस्टर वैभव है कि नहीं है, नहीं है। देखिए n नॉट इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2, ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, n0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1, n0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू n2। नाउ फॉर n greater than equals to n naught, this implies that n greater than equals to n1, n greater than equals to n2, this implies that n greater than equals to n1 है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ xn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ yn माइनस एम। मैं अब इनइक्वालिटी फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन xn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन बाय 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन yn लेस देन m प्लस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन xn, बट xn लेस देन और इक्वल टू yn एक गिवन है, yn लेस देन m प्लस एप्सिलॉन बाय 2। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, xn लेस देन और इक्वल टू yn फॉर एवरी n बिलोंग्स टू m, और फर्स्ट वाला और लास्ट वाला साथ में लिख दीजिए।
तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, L लेस देन m plus epsilon by 2 plus epsilon by 2, that is epsilon. Therefore you have proved that, we have proved that, and this is true for all epsilon greater than 0. Therefore L less than or equal to m, or you can say that limit n tends to infinity xn less than or equal to limit n tends to infinity yn. ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया. अभी दूसरा पार्ट हम देखते हैं. दूसरे पार्ट में क्या हमें बताया हुआ है कि वी हैव गिवन दैट xn डाइवर्स टू इंफिनिटी. मुझे प्रूव क्या करना है, yn डाइवर्स टू इंफिनिटी प्रूव करना है. तो देखिए ये मुझे प्रूव करना है, तो मैं कैसे प्रूव करूँगा. मैंने अभी लिखा है डाइवर्स टू इंफिनिटी वाले डेफिनेशन. व्हेन आई कैन से दैट xn इक्वल टू इंफिनिटी फॉर एवरी a ग्रेटर देन 0 यू मस्ट हैव टू फाइंड आउट सम n नॉट सो दैट समथिंग हैपन. ठीक है, तो मुझे बताइए यहाँ पे मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए. मुझे y टेंड्स टू इंफिनिटी बताना है, तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए अभय. a greater than 0. Yes, so let's take a greater than 0 be given. अभी देखिए मुझे क्या दिया हुआ है, xn टेंड्स टू इंफिनिटी एज n टेंड्स टू इंफिनिटी. तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट n नॉट इन n such that for all n greater than equals to n naught, this implies that xn is bigger than a. So now for this particular n, मैं देखिए क्या करता हूं, a लेस देन xn, और xn लेस देन और इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो मैं सब ये सारा एक साथ में, लेट मी पुट ऑल दिस टुगेदर. तो मैंने ये लिया था n नॉट फाइंड किया. Therefore for every a greater than 0 there exists n naught in n, so that for all n greater than equals to n naught, this implies that a less than yn or yn greater than a, or you simply say that limit n tends to infinity yn is equal to infinity or yn diverges to infinity. So this is the result and this is the proof. Now let me take some examples. ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, in usual notations prove the following. तो देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये सारे एग्जाम्पल है ना, वो हम सैंडविच थ्योरम का यूज करके प्रूव करेंगे. ठीक है, ये है सीक्वेंस, इसकी लिमिट मैंने 0 प्रूव करनी है. तो देखिए ये है, तो सैंडविच थ्योरम के लिए मुझे 3 सीक्वेंसेस चाहिए, और कौन कौन सी चाहिए, तो कि xn yn एंड zn, और उसमें क्या होता हो, xn लेस देन और इक्वल टू yn लेस देन और इक्वल टू zn, और xn और zn की लिमिट सेम है, तो बीच वाली सीक्वेंस की भी लिमिट सेम हो जाएगी. तो मुझे क्या करना चाहिए, ये जो सीक्वेंस की लिमिट मुझे 0 लानी है, तो आई मस्ट हैव टू ब्रिंग दिस सीक्वेंस बिटवीन 0 एंड 0, और ठीक है ये वाली को. तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, n² + n,
मैं इसे रेशनलाइज करता हूँ, ठीक है। तो उसका रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n। तो ये आ जाएगा मेरे पास n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n, ठीक है। तो ये मेरे पास आया। नाउ लेट मी से दिस टू बी 1। ये एक चीज आपको पता है, n स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज बिगर देन 1, क्योंकि यहाँ पे 1 में ऐड किया हुआ है। तो मैं दोनों साइड n ऐड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1, ठीक है। तो ये देखिए, और n प्लस 1, तो ये हुआ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन n। रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 बाय n स्क्वायर प्लस 1, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 बाय n, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसे मुझे दो बाय 1 एंड 2, मैं क्या कह सकता हूँ, 0 लेस देन n स्क्वायर प्लस 1। और ये फर्स्ट वाली सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस है, 0 की लिमिट क्या होगी एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, 0। और ये 1 बाय n सीक्वेंस है, उसकी भी लिमिट क्या होगी एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, वो भी 0 हो। नाउ बीच वाली सीक्वेंस, इसकी भी लिमिट क्या होगी, तो ये उत्तर है इस प्रश्न का। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, इसमें क्या है। आई थिंक ये तो हमने वन अपॉन n रेस टू p, शायद हमने ये लिया है कि नहीं लिया है, हाँ लिया है, ये हो गया है। सो आई विल नॉट डिस्कस दिस वन। ये भी ये मैं ले लेता हूँ। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x रेस टू n इज इक्वल टू 0। ये मैंने प्रूव किया है व्हेन वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस, मगर मैं अब यहाँ ये सैंडविच थ्योरम से प्रूव करूँगा इसकी लिमिट 0 है, ठीक है। सो नाउ हियर लुक एट दिस, हियर मॉड x इज लेस देन 1, ठीक है। तो इंप्लाइज क्या होगा, मॉड x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस b, ठीक है। और सम b ग्रेटर देन 0, ये मैं लिख सकता हूँ। आई कैन ऑलवेज फाइंड आउट सम b फॉर विच मॉड x कैन बी रिटन इन दिस वे, क्योंकि ये 1 से छोटा है, ठीक है। तो ये मैं हमेशा लिख सकता हूँ mod x इक्वल टू 1 प्लस b। नाउ यू नो बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस b रेज टू n, ये क्या होगा 1 प्लस nc1 b nc2 b स्क्वायर एंड सो ऑन ncn b रेज टू n,
ठीक है, तो देखिए ये सारे टर्म पॉजिटिव है, NC2 B² NCN, क्योंकि B पॉजिटिव है तो मैं ये एक ही टर्म लिखूंगा यहाँ पे, ये लिख दूंगा 1 प्लस NC1 B, ये हो जाएगा क्या 1 प्लस NB, ठीक है, और विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन NB, ठीक है। तो ये मुझे रिलेशन मिला 1 प्लस B रेज टू N इज ग्रेटर देन, therefore I have got this relationship 1 plus B raised to N strictly greater than NB. Now let me take reciprocal on both the sides, so I will get, ये क्या है एक्चुअली mod x raised to n, क्योंकि mod x इक्वल टू 1 प्लस b है। तो देखिए इसका मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी विल बी चेंज, ये मुझे ये मिल गया 1, therefore I have this thing 0 which is less than or strictly less than 1 by mod x raised to n लेस देन 1 बाय NB, ठीक है। तो देखिए सॉरी ये mod x 1 बाय mod x हो गया, यहाँ पे मैंने भूल कर दी लिखने में, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन mod x रेज टू n, मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो mod बाय x रेज टू n इज लेस देन now the limit of first and last sequence, वन अपॉन एन बी की लिमिट क्या होगी, n टेंस टू बी तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन n गोज टू 0 एज n टेंस टू इनफिनिटी, therefore by sandwich theorem limit n tends to infinity mod of x raised to n has limit 0, और हमने आगे एक रिजल्ट दिखा था mod x n equal to L if and only if x n equal to L, therefore limit 0, sorry I can remove mod, ये आगे हमने प्रूव किया है, ठीक है। सो प्रोवाइडेड mod x is less than 1, so ये भी सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन है। Now let me take another result, another example, वो क्या है, कितना है ये, तीसरा या चौथा, इस थर्ड वाला, ये क्या कहता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n रेज टू 1 बाय n, ये हमें 1 प्रूव करनी है। तो ये मैं क्या करता हूँ, ये 1 को मैं लेफ्ट साइड ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा n रेज टू 1 अपॉन n माइनस 1, और उसको मैं नाम दे देता हूँ सीक्वेंस xn, लेट xn इक्वल टू n रेज टू 1 बाय n माइनस 1, we shall prove that limit of xn as n tends to infinity is equal to 0, इसकी लिमिट में 0 बता देता हूँ, तो n रेज टू 1 अपॉन n की लिमिट 0 हो जाएगी, ठीक है। सो लुक एट दिस क्लियरली, xn इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि n 1 से स्टार्ट होगा तो 1 रेज टू 1 बाय 1 दैट इज 1 माइनस 1 0, ठीक है। बाद में 2 होगा तो 2 रेज टू 1 बाय 2 इज रूट 2 माइनस 1 इज ऑल्सो फॉर, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एनी, सो 0 लेस देन और इक्वल टू xn, ठीक है। नाउ xn is equal to n raised to 1 by n minus 1. Now bring 1 on left side, so xn plus 1 is equal to 1. Now let me take nth power on both the side, so you will get n raised to 1 by n raised to n
and this is nothing but 1 plus xn raised to n. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, nc1 प्लस nc1 xn प्लस nc2 xn स्क्वायर, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम xn raised to n. So this implies that, और ये देखिए xn तो सारे पॉजिटिव है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको, ये बड़ा होगा किससे, ये वाला टर्म कंसिडर करता हूँ nc2 xn स्क्वायर, एक ही टर्म लेता हूँ यहाँ, तो ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्म है, तो मैंने क्या, सो व्हाट आई गॉट इज दिस n greater than equals to nc2 means n into n minus 1 by 2 xn square. So n gets cancelled from both the sides. So finally we get this 2 by n minus 1 is greater than equals to, so let me take square root on both sides. So you can now, by taking root, you can say that this root 2 upon n minus 1 is greater than equals to, और xn greater than equals to 0. तो मैं ये 0 वाला पोर्शन पहले लिखता हूँ, xn लेस देन और इक्वल टू, अब क्या होगा 2 by n minus 1. Now look at these two sequences 0 and now limit n tends to infinity, 0 is equal to 0 and limit n tends to infinity 2 by n minus 1. This has also limit 0. Therefore by sandwich theorem you can say that limit n tends to infinity xn equal to 0. Therefore n raised to n has limit 1. ठीक है, तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x रेज टू 1 अपॉन n, अगले एग्जांपल में n रेज टू 1 अपॉन n था, यहाँ पे x रेज टू 1 अपॉन n फॉर x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे n रेज टू 1 अपॉन n था, so this becomes a particular case of this one. Okay, no, but here x and here n, here also variable and here x is fixed. Okay, so now let's prove this one. मुझे दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 0, तो आप, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको दो भागों में बांट दूंगा, 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो ये 0 less than x, let me take here just less than, और x greater than equals to 1. तो मैं दोनों केस में ये लिमिट 1 प्रूव करूंगा. ठीक है, तो लेट मी कंसिडर द फर्स्ट केस, x greater than equals to 1. ठीक है, तो अकॉर्डिंग बाय आर्किमिडियन, सिंस n is not bounded, so there exist, according to Archimedean property or by Archimedean property, you can find out there exists some n belongs to n such that x less than or equal to n. So now by taking 1 raised to n power on both the sides, so you will get this. Okay, now x is greater than equals to 1.
ठीक है, और 1 लेस देन और इक्वल टू x ये गिवन है, तो ये क्या होगा 1 रेस टू n लेस देन और इक्वल टू x रेस टू n। ठीक है, तो ये मैं दोनों को देयरफॉर ये दोनों को साथ में रखता हूँ तो क्या हो जाएगा x रेस टू 1 बाई n, सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए 1 बाई n। ठीक है, तो क्या मुझे मिला, hence 1 less than or equal to x raised to 1 upon n which is further less than or equal to n raised to 1 by n, और ये दोनों की फर्स्ट और लास्ट की लिमिट सेम है। ठीक है, नाउ वी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, 1 की लिमिट क्या होगी 1 और n रेस टू 1 अपॉन n इसकी लिमिट भी क्या है 1। लास्ट एग्जांपल में हमने प्रूव किया, देखिए ये n रेस टू 1 अपॉन n है, ये यहाँ पे मैंने प्रूव किया ना n रेस टू 1 अपॉन n हैज लिमिट 1। ठीक है, तो ये n रेस टू 1 अपॉन हैज लिमिट 1 एंड दिस हैज लिमिट 1, so therefore by sandwich theorem ये बीच वाले की भी लिमिट नॉट 0, इट विल बी 1, मुझे ये तो लाना था। तो फर्स्ट इन द फर्स्ट केस आई हैव प्रूव्ड दैट दिस लिमिट इज v। नाउ लेट मी टेक x बिटवीन 0 एंड 1, तो क्या हो जाएगा therefore if I take its reciprocal 1 by x is greater than 1। ठीक है, so again by case 1 limit n tends to infinity 1 by x रेज टू n, ये क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है वो लेस ग्रेटर देन 1 के लिए उसकी n पावर की लिमिट 1 हमने प्रूव की है। ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा x रेज टू 1 बाई n। ठीक है, यहाँ so again by taking reciprocal लेगा तो ये क्या हो जाएगा x रेज टू 1 बाई n और ये 1। ठीक है, तो ये केस में भी हमने प्रूव कर दिया कि सो इन एनी केस फॉर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये थे एग्जांपल्स, कुछ बाकी है। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ सैंडविच थ्योरम, so we stop our discussion। સર આપણે 302 છે ને? yes હા, તો આ 302 ના આપણે જૂના પેપર્સ હોય તે મોકલજો ને તમારી પાસે હોય તો। ओके आई विल सी। ठीक है, ठीक है मेरे पास होगा तो मैं आपको भेज दूंगा, वरना पेपर का सेट है ना वो कॉलेज पे तो है ही, सो ठीक है, फाइन, सो गुड बाय।